So everyone note down, in today's class, we're going to begin linear programming. Linear programming is one of the most easiest chapter of your syllabus. If we solve the exercise, you will come to know, yes, it is definitely one of the most easiest chapter of all. And here you'll find that almost the concepts and almost the things you have already done in other classes also, either in class 11 or in class 9 or 10, something like that. So what is linear programming? Let us start with the help of few questions. But before starting linear programming, let me tell you that basically linear programming, you have got three types of problem. In linear programming, you have got three types of problem. Problem type number one is manufacturing problem. Okay, type number one is manufacturing problem. Type 2 is type problem. And type 3 is transportation problem. So now on ये एग्जाम में आता कितना मार्क्स का है? 5 marks. Now you might be thinking that how it will come in MCQ. Definitely, as I've seen the pattern, maximum minima is a quite lengthy chapter. I mean, some of maximum minima takes at least 8 to 9 minutes of time. I mean, to solve. But then also the questions of maximum minima will come in exam. But how it will come in exam? जो मैंने पैटर्न देखा वो पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे. डोंट वरी कि एग्जाम में किस तरह से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है. So similarly, linear programming का एक question is very lengthy. और वो lengthy sum MCQ में कैसे आएगा? We will discuss it in the class. Let us complete first linear programming. Okay? So linear programming से एक sum 5 marks का आता है. देखो अभी तक जो भी सिस्टम था उस सिस्टम के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग और डाइट प्रॉब्लम ही तुम्हारे सिलेबस मतलब एग्जाम में आता था. But I feel that with the change of pattern, transportation problem is also very very important. इनफैक्ट बहुत लोग इसको मतलब हर साल हम भी इसको बोलते थे स्टूडेंट को कि इसको निग्लेक्ट कर दो, मतलब इसको इग्नोर कर दो. बट इस साल के लिए मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप फॉर द पैटर्न व्हिच इज द टाइप ऑफ पैटर्न व्हिच वी हैव इन टर्म. So that's why we are going to focus on each and every time, not only the manufacturing and the diet problem, but also the transportation problem. Okay, so today let us see in today's class we will dedicate our entire time in forming inequation. आज का क्लास में हम लोग ग्राफिकल पार्ट भी सीखेंगे क्योंकि ग्राफिकल पार्ट बहुत आसान है. अगर तुमको इनइक्वालिटीज फॉर्म करने आता है तो ग्राफिकल पार्ट इज वेरी वेरी सिंपल. So today's class we will concentrate in how to represent the entire question problem sums, I mean in the form of inequation. So I want everyone to just read the first question. Everyone note down. And the question is sum number 8. Sum number 8 पहले मैं चाहता हूं कि सबको sum number 8 एक बार read करो. And you know that I have already messaged you in the group. ठीक है, एक बार मैंने मैसेज जो किया जो इमेजेस, वो इमेज का जो पहला पेज है वो पहला पेज में सम नंबर 8 है. तो सम नंबर 8 एक बार सबको पहले रीड करो. Okay, have you read the question? Please read the question first. Sir, so done. Now see, I want everyone to concentrate. See, our task will be to represent this problem sums, to represent this question in a tabular form. हम लोग का काम है कि ये पूरा क्वेश्चन को एक टेबल पे पहले रिप्रेजेंट करना. ठीक है, अब मुझे तुम लोग ये बताओ क्वेश्चन को पढ़ के कि ये एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है
यस, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है बताओ इस So मैन्युफैक्चरिंग, necklets and bracelets. इसमें क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है? नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स। आई रिपीट, यहाँ पे दो चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक है तुम्हारा नेकलेसेस और दूसरा क्या है? ब्रेसलेट्स। और उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है कि वो नेकलेस पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और ब्रेसलेट्स पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब बात ये है कि क्या देखना एक बार कि तुम्हारे पास सपोज अगर तुम्हारा काम, सपोज यू कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड एंड सपोज इफ यू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहां पे सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि तुम्हारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल तक यूज करके, है कि नहीं, ऑप्टिमम इन एफिशिएंट वे यूज करके तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव हो वो मैक्सिमाइज किया जाए। ऑब्जेक्टिव एक मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होगा उसका दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितना ज्यादा कॉस्ट मिनिमाइज किया जाए जिससे प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज हो पाए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा चीज है कि जितना ज्यादा हम लोग अपने अपने रिसोर्सेज को यूज करके एक दिन में जितना ज्यादा आउटपुट ले पाए उतना ज्यादा फायदा होगा, राइट? दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। बट मान लो हम लोग अपना जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो हर एक चीज से कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड का मतलब ये हुआ कि सपोज तुम्हारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और तुम्हारा एक जगह गोडाउन्स है, तुम्हारे गोडाउन्स में स्टोरेज कैपेसिटी है 100 यूनिट्स का, और तुम्हारी फैक्ट्री में जो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करने का कैपेसिटी है वो 200 यूनिट्स है। तो 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के बाद तुमको ये भी तो देखना पड़ेगा कि तुम्हारा स्टोरेज कैपेसिटी भी तो 100 यूनिट्स है। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम मान लो डेली 200 यूनिट अगर मैन्युफैक्चर करते जाते हो तो तुम्हारा एक्स्ट्रा 100 यूनिट जो है वो क्या करना पड़ेगा तुमको, उसमें स्टोरेज में प्रॉब्लम आएगा। सो आवर मेजर प्रॉब्लम हियर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनीथिंग, मतलब तुम्हारा अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो तुम्हारा मेजर प्रॉब्लम क्या है कि तुम सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते। तुम अपने लेबर को पूरा यूटिलाइज कर दिया तो तुम खाली यूटिलाइज करने से नहीं होगा, तुम्हारे पास उतना कैपिटल भी होगा कि तुमको कैपिटल लगा करके उसको उतने सारे रॉ मटेरियल्स भी तो प्रोवाइड करने होंगे। सो देयर आर मेनी थिंग्स, वी आर फाइंडिंग दैट एक मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मतलब तुम्हारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, देयर आर सेवरल कंस्ट्रेंट्स, देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट योर कॉस्ट, व्हिच अफेक्ट्स योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हिच अफेक्ट्स योर आउटपुट। तो ऐसा नहीं कि हम एक दिन में बोल सकते हैं 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर देंगे। तुमने आज सोच लिया और तुम अपने लेबर को बोल दिया कि आज अपने लोग 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, तो क्या तुम्हारा हो जाएगा काम? नहीं, तुमको तो देखना पड़ेगा ना कि मेरा तो स्टोरेज कैपेसिटी 100 यूनिट का है, मेरे पास कैपिटल उतना ही है जितना मैं एक दिन में 100 या 110 यूनिट में मैन्युफैक्चर कर सकता हूं, तो कैसे पॉसिबल होगा? इसका मतलब तुम्हारे लिए एक गलती किया तुमने। क्या गलती किया कि तुमने लेबर ज्यादा रखा है, या तुमको ये काम करना पड़ेगा कि कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ेगा अपना, जिससे तुम्हारे पास रॉ मटेरियल ज्यादा हो, जिससे तुम अपना जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो और बढ़ा पाओ। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कहने का मतलब है आज हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम देखेंगे जहां पे बहुत सारा चीज होगा और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सारे चीजों पे डिपेंडेंट होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सारे चीजों पे अफेक्टेड होगा, उस चीज से अफेक्ट होगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये सारे ऑब्जेक्टिव को ये सारे कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स जो अपने चीजों, मेरा जो ऑब्जेक्टिव उसको अफेक्ट करेगा, बट ये सारे चीजों को यूज करके ऑप्टिमम लेवल तक हम अपना ऑब्जेक्टिव कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। जैसे कॉस्ट अगर हो तो मिनिमाइज, प्रॉफिट हो तो मैक्सिमाइज, कैसे करेंगे? ये हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है क्लास का, और ये हम लोग क्या करेंगे? मैथमेटिकली करेंगे। ओके, सो एवरीवन नोट डाउन, द क्वेश्चन इज अबाउट प्रोडक्शन ऑफ नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स। सो जो चीज हम लोग को प्रोड्यूस करना है उसको क्या करेंगे हम लोग? वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मैन्युफैक्चर करना है? एक नेकलेस, एक नहीं मतलब नेकलेस और दूसरा ब्रेसलेट्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा। ठीक है, अब देखो नेकलेस और ब्रेसलेट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारा वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? नेकलेस का प्रोडक्शन और ब्रेसलेट्स का प्रोडक्शन क्या चीज पे डिपेंडेंट है? देखो रीड करो, the total Time of number of manufacture. listen here, the total number of necklaces and bracelets it can handle per day is at most 24. पहला प्रॉब्लम ये है कि हम लोग दोनों मिला करके नेकलेस और ब्रेसलेट्स दोनों मिला करके एक दिन में
ज्यादा से ज्यादा हम लोग 24 यूनिट्स हम लोग बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते हम लोग। क्लियर? ये पहला प्रॉब्लम है। मतलब एक दिन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा 24 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ओके, पर डे नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर विल बी नॉट मोर देन 24, is less than 24. It can be 24 but less than 24, but not more than 24, we can say either 24 or less than 24. Next, the second problem is it takes 1 hour to make a bracelet. एक यूनिट ब्रेसलेट बनाने में 1 घंटा लगता है, टाइम फैक्टर। सेकंड इज द टाइम फैक्टर। अगर हम एक ब्रेसलेट बना रहे हैं तो उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा टाइम, and half an hour to make a necklace, and half an hour to make a necklace. Next, the maximum number of hours available per day is 16. टाइम फैक्टर क्या है कि हमारे पास टाइम जो है वो 16 आवर्स से ज्यादा नहीं है। मतलब एक दिन में हम लोग जो टाइम, एक दिन हमारे पास जो टाइम है वैसा हम नहीं बोल सकते कि तुम लेबर को हम बोल सकते कि बैठ जाओ आज काम करते जाओ, मुझे बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करना है, तुम आज 24 घंटा काम करना है तुमको। आई कैन नॉट डू दैट, बिकॉज जो लेबर लॉ है उसके हिसाब से 16 आवर्स से ज्यादा हम लोग काम करवा नहीं सकते। या मान हो सकता है उधर जो एरिया है उसमें हम लोग 16 आवर्स से ज्यादा हम लोग फैक्ट्री ऑन नहीं कर सकते। मतलब फैक्ट्री ऑन हमारा 16 आवर या 16 आवर से कम ही हो सकता है। ये दूसरा फैक्टर है, टाइम फैक्टर। ठीक है, ये दोनों फैक्टर जो है को देखते हुए मुझे क्या अचीव करना है? अचीव करना है प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि नेकलेस के मैन्युफैक्चर करने के बाद हम लोग एक नेकलेस को बेच करके 100 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और एक ब्रेसलेट को बेच करके वी कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹300। तो बोला जा रहा है कि ये सारी चीजों को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए, मैक्सिमम नहीं बोला जाता, ऑप्टिमम लेवल में यूटिलाइज करके ये मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है, ये हमको जानना है। हमको क्या जानना है कि ये सारे मतलब टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके और नंबर ऑफ यूनिट्स को ध्यान रखते हुए हम लोग कितना नेकलेस और कितना ब्रेसलेट्स मैन्युफैक्चर करेंगे कि हमारा एक दिन में जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमको पता नहीं है कि कितना नेकलेस मैन्युफैक्चर करेंगे और कितना ब्रेसलेट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। सो लेट इट बी x यूनिट एंड y यूनिट। I repeat, let the number of necklaces be x and let the number of bracelets be y unit. Let the number of necklaces manufactured per day be x and let the number of bracelets manufactured per day be y. अब देखो सबसे पहला प्रॉब्लम, therefore the linear constraints are दोनों को मिला करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक दिन में दोनों को मिला करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 24 यूनिट ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मींस वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर मोर देन 24 यूनिट्स, ओके, कंबाइन, दोनों को कंबाइन करके। दूसरा बात, एक नेकलेस को बनाने में आधा घंटा लगेगा, तो एक्स नेकलेस को बनाने में कितना घंटा लगेगा? x/2 hours। x/2 hours, बिकॉज़ सिंपल सा चीज, दो नेकलेस बनाने में 1 घंटा, देखो 2 into half। 4 नेकलेस बनाने में 2 घंटा, 4 into half। तो एक एक्स नेकलेस बनाने में कितना घंटा लगेगा? x into half, that is x/2 प्लस एक ब्रेसलेट बनाने में 1 घंटा, तो y ब्रेसलेट बनाने में कितना घंटा? y hours। और दोनों को मिला करके हमारे पास टाइम lesser than equal to 16। ठीक है, बट यस वी मस्ट ऑलवेज सिंपलीफाई। So we have got 1 and 2. Also एक बात बताओ तुम लोग, हो सकता है कि नेकलेस को मैन्युफैक्चर नहीं करने से ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा। मतलब हम नेकलेस नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा और सारा का सारा ब्रेसलेट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, मतलब द नंबर ऑफ नेकलेस वी आर मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट बी नेगेटिव। आई रिपीट, द नंबर ऑफ नेकलेसेस वी आर मैन्युफैक्चरिंग पर डे कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब x का वैल्यू जो है it has to be greater than equal to 0. X का value has to be greater than equal to 0 and the value of y has to be also greater than equal to 0. Please note down. So मतलब x और y का value has to be greater than equal to 0. What is the reason? Because what does x denotes? X denotes number of necklaces. What does y denotes? Y denotes number of bracelets. तो क्या एक बात बताओ, number of necklaces and number of bracelets क्या नेगेटिव में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता।
हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमको अगर ज्यादा प्रॉफिट ना समझ में आए तो हम अपना नेकलेस मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे, मैन्युफैक्चर करना, खाली ब्रासलेट्स करेंगे। क्या मुझे लगे कि ब्रासलेट मैन्युफैक्चर करने में सही नहीं है तो हम ब्रासलेट्स बंद कर देंगे, खाली नेकलेस मैन्युफैक्चर करेंगे। बट आई कैन नॉट मैन्युफैक्चर इन नेगेटिव। कैन आई से दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी नेगेटिव? नो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. So we have got how many constraints? We have got 1, 2, 3, 4. मतलब x and y must be such that x और y ऐसा होना चाहिए कि वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये वाला भी सेटिस्फाई होना चाहिए। चारों सेटिस्फाई होगा तब जाकर। यस सर। Sir, it is given in the question x and y each should be at least 1. I did not read that. Sorry, I'm sorry for that. It is being given that at least one of them. Oh, sorry. मैं वो last line बोलूँगी. So at least one बोला मतलब मुझे यहाँ पे greater than equal to 1. अगर वो नहीं लिखा रहता ना तो मुझे वो देना पड़ता। अगर वो नहीं देता तो मुझे ये चीज लिखना पड़ता। Alright everyone. So as it is given, so okay, fine. अब देखो next. Let z be the profit function. तो z क्या होगा? एक नेकलेस को बेच के अगर 100 रुपए प्रॉफिट आता है, x नेकलेस को बेच के 100x rupees प्लस 300। सो हम लोग को करना क्या है, मतलब मैं बता रहा हूं, हम लोग को करना ये है कि देखो ये पार्ट करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज बाकी जो पार्ट है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके और सॉल्व करना है। वो है लंबा लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब इंपॉर्टेंट इन वो बहुत इजी है समझना। तो हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे? Yes. So you got cut off, sir, like for around 20 seconds. Is it so? Others? Yes, sir. Yes, sir. I think there is some network issues I think today because I don't know why. Because So now it's completely okay, sir. Just So right now it's fine. Because when I just joined, I mean entered this room, it was blinking red. Then again when I reset kiya, then it is okay now. Okay, fine. We will have to think network problem. Okay, fine. So I repeat once again. So using this, I repeat once again. तो ये मैं क्या बोल रहा था देखना एक बार। हम लोग का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो एक ग्राफिकल पार्ट। अगर हम लेंथ वाइज देखें तो सम का लेंथ वाइज देखें तो ग्राफिकल पार्ट में बहुत टाइम लगता है, इसमें कम टाइम लगता है। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ या तुम लोग को भी समझ में आएगा कि ये पार्ट अगर नहीं जानोगे तो ग्राफिकल पार्ट समझ में नहीं है, बिकॉज इसी को तो ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, 4-5 क्वेश्चंस करके और हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे इनइक्वालिटीज फॉर्म किया जाता है, बिकॉज ये अगर करने आ गया तो बाकी बहुत आसान है। ओके, सो एक बार ये कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद मैं चाहता हूं सबको को सम नंबर 10 से करने का एक बार 10 क्लियर। प्लीज डोंट बी इन रश और कोई आंसर पहले नहीं बोलेगा। पहला नंबर पॉइंट सबको का काम होगा, पहले इस तरह का टेबल बनाना, फिर आराम से इस तरह के इक्वेशंस बनाना, यहां तक ओके, जस्ट कंप्लीट इट। ओके, प्लीज टेक योर टाइम एंड डू द सम। आई एम गिविंग यू 4 to 5 minutes time. Do sum number 10. Then again when you try sum number 10, then again there are many students who will not be able to do, then again I will show it in the board. तो फिर उसके बाद मैं एक और सम ट्राई करने के लिए दूंगा। तो इस तरह से 3-4 सम में देखना एकदम क्लियर हो जाए। So everyone note down. A manufacturer produces nuts and bolts. तुम लोग एक चीज देखना कि पिछले सम में हम लोग क्या मैन्युफैक्चर कर रहे थे, नेकलेसेस एंड ब्रासलेट्स। इस समय क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम लोग, इस समय हम लोग नट्स एंड बोल्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एक चीज याद रखना, जो चीज अपने लोग को फाइंड आउट करना है, जो चीज अपने लोग को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे देखना, एक बार वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब लिखेंगे कैसे, वर्टिकली टेबल में, मतलब यहाँ पे नट्स लिखेंगे और यहाँ पे बोल्ट्स लिखेंगे। ठीक है, नट्स एंड बोल्ट्स का जो मैन्युफैक्चर है जिस पर डिपेंडेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे रो वाइज, और बाकी सब हम लोग वर्टिकली लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, टू मैन्युफैक्चर नट्स एंड बोल्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी। अब देखो देयर आर 2 machines used, मशीन ए एंड मशीन बी। मतलब वो क्या है देखना एक बार, अगर तुमको नट्स मैन्युफैक्चर करना है तो तुम जो भी रॉ मटेरियल है वो मशीन ए में डालोगे, उसमें कुछ टाइम प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो जो आएगा उसको किस में हम लोग डालेंगे, मशीन बी में। मशीन बी में प्रोसेस होगा,
फिर मशीन बी से प्रोसेस होने के बाद जो निकलेगा वो हमको क्या मिलेगा, नट्स एंड बोल्ट्स। Did you get my point? I hope you have understood. मतलब नट्स एंड बोल्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे इसके लिए दो मशीन में प्रोसेस कराना पड़ेगा। पहले मुझे रॉ मटेरियल्स को डालना होगा मशीन ए में, उसमें कुछ टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, प्रोसेस होकर निकलेगा सेमी फिनिश प्रोडक्ट, उसको क्या करेंगे मशीन बी में डालेंगे, बी में डालने के बाद कुछ टाइम प्रोसेस होगा और जो निकलेगा क्या मिलेगा हम लोग को, फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा, क्या, नट्स का और बोल्ट्स। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ, इट इज रिटन दैट इट टेक्स 1 hour of work on machine A and 3 hours of work on machine B to produce a packet of nuts. So nuts are produced in packets. एक पैकेट बनाने के लिए 1 घंटा मशीन ए में चलाना पड़ेगा, प्रोसेस होना पड़ेगा, एंड उसके बाद 3 घंटा मशीन बी में चलाना पड़ेगा, प्रोसेस होना पड़ेगा। समझ में मेरी बात? आई एम सॉरी, ठीक है। एक पैकेट नट्स बनाने के लिए 1 घंटा प्रोसेस होना पड़ेगा मशीन ए में, उसके बाद 3 घंटा प्रोसेस होना पड़ेगा मशीन बी में। इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, एक पैकेट बोल्ट्स बनाने में, एक पैकेट बोल्ट बनाने के लिए 3 घंटा मशीन ए में प्रोसेस होना पड़ेगा एंड 1 hour प्रोसेस होना पड़ेगा मशीन बी में। ठीक है, तब जाके मुझे एक पैकेट बोल्ट्स का मिलेगा। सो हाउ मेनी, अब देखो इसको करने के बाद ये भी दिया हुआ है कि हम लोग एक दिन में जो मशीन्स है वो हम लोग कितने ज्यादा चला सकते हैं। इट इज नॉट फॉर मोर देन 12 hours, मतलब 12 घंटा या 12 घंटा से कम ही हम लोग मशीन ऑपरेट कर सकते हैं। और ये सारी चीज को ध्यान रखते हुए मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, वेयर वी क्लियरली सी दैट एक पैकेट नट्स बनाने में 70 रुपीज 15 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है और एक पैकेट बोल्ट्स बना के बेचने में उस पे फायदा कितना हो रहा है, 7 रुपए पर पैकेट। तो यहाँ पे जो है नट्स पीस में तुम्हारा यहाँ पे नहीं, हमको जो ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये पीस के हिसाब से कंडीशन नहीं है, ये पैकेट के हिसाब से कंडीशन है। तो कितने पैकेट नट्स और कितने पैकेट्स बोल्ट्स बनाने हमको पता नहीं। सो लेट इट बी x पैकेट्स एंड y पैकेट्स ऑफ नट्स। अगर तुम्हारा एक बार टेबल वाला पार्ट क्लियर हो गया ना तो फिर तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर्म करने में इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगा, 1x plus 3y less than equals to 12, 3x plus 1y less than equals to 12। You know that जो भी हम लोग पैकेट्स बना रहे हैं वो पैकेट्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। I cannot manufacture negative packets of nuts and negative packets of bolts. Whatever I am manufacturing that will be either 0 or more than 0। उसके बाद z हो जाएगा 17.50 into x plus 7y। आई थिंक अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, जिन लोगों को थोड़ा टफ लगा होगा, थोड़ा लेट से जो समझते हैं, अभी थोड़ा क्लियर हुआ पहले से, पहले के मुताबिक। अब एक और सम करो तो और एकदम क्लियर हो जाएगा, देखना ही एक बार सम नंबर 14 करो एंड सम नंबर 17, फिर हम लोग डाइट प्रॉब्लम करेंगे 14 एंड 17 और फिर आराम से एक क्लास में हम लोग ग्राफ पार्ट करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। So I want to mention it. Okay. Very good. I'll just explain you this one. Okay. तो यहाँ पे अपने लोगों को बनाना है हम लोग को 2 तरह का प्रोडक्ट। एक है तुम्हारा डिलक्स मॉडल और दूसरा है ऑर्डिनरी मॉडल। ये बनेगा कैसे? Instead of machine, we require a skilled man and semi-skilled man. Semi-skilled man. Now, as per the union law, देखो लिखा हुआ है ordinary model, now see just a minute, लिखा हुआ है by union rules no man can work for more than 8 hours per day। मतलब एक आदमी 8 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकता। So how many skilled men are available? 5। So how many skilled men का hours available है अपने पास? मतलब skilled men का अगर हम हमारे पास 5 into 8 है कि नहीं, मतलब एक आदमी का 8 घंटा टाइम है हमारे पास, मतलब हमारे पास 8 skilled men का टाइम है, उनसे हम काम करवा सकते हैं। तो 5 आदमी है तो कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है? less than equals to 40। और कितने सेमी स्किल्ड मैन है? 10।
80. Is this clear everyone? Okay, अब देखो लिखा हुआ है कि see the making of a deluxe model requires 2 hours work by a skilled and 2 hours by a semi skilled. दोनों के लिए दोनों में हम लोग को 2-2 घंटा टाइम चाहिए तब जाके एक डिलक्स मॉडल बनेगी. The ordinary model requires 1 hour and 3 hours semi skilled. और उसके बाद हम लोग के पास क्या करना चाहिए? प्रॉफिट गेन करना है. 15 रुपीज यहाँ पे है, 10 रुपीज ऑर्डिनरी मॉडल. तो आई थिंक इसके बाद तो हो जाएगा. x इसको y ले लेते हैं तो x 2x plus y less than equals to 40, 2x plus 3y less than equals to 80. x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. x उसके बाद z हो जाएगा 15x plus 10. I hope it is clear to everyone. Yes, sir. See, diet problem is absolutely same. Only manufacturing is different. तो तुम लोग का काम क्या, मैं आज तुम लोग को दूंगा कुछ sums. You have to try, I mean, all the questions of diet and manufacturing. Clear? Only till here. Next day I'll just show you 2 sums only, graph part, and I'll teach you transportation. Today I'll just keep